Hello everybody, welcome back to my channel Shiv Astrology. I am astrologer Pankri Verma and today I am going to share my observations with you all when Jupiter is placed in ascendant or in Lagna or in first house. आज मैं आपसे अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर करूंगी जब बृहस्पति ग्रह गुरु ग्रह लग्नस्थ हो जाते हैं या फिर पहले घर में हॉरोस्कोप के पहले घर में विराजमान हो जाते हैं तो किस तरीके के इफेक्ट्स देते हैं। आज हम जुपिटर ग्रह की बात करेंगे। From today I am going to start videos on Jupiter in various houses. So today's topic of discussion is when Jupiter is placed in the first house or ascendant in a natal chart. We all know that Jupiter is the guru of all planets, so needless to say it has an extremely auspicious presence in the astrological charts of human beings, showering divine blessings, prosperity and good luck. Jupiter helps a person see many positive elements of life. Okay, the natives with Jupiter in first house or in Lagna, these people are witty, wise and can be called unstoppable in many ways. Okay, they have a strong will and believe everything is achievable provided a person is ready to put in the hard work. Okay, these natives generally don't take no for an answer, and many times in many instances are known to take up tasks because of their sheer willpower and I can say a basic instinct to get things completed. Okay, famous and likable. These individuals are broad-minded, I can say, and extremely loyal. Conditions apply हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि जब बृहस्पति पहले घर में बैठे हो तो इंसान लॉयल ही हो, क्योंकि और भी प्लानिटरी पोजीशंस को हमें देख के बताना होता है कि बंदे का, इंसान का कैरेक्टर कैसा है, वो किस तरीके का है। ओके, सो दिस इज द कंडीशंस अप्लाई वाला पॉइंट। Now I can say famous and likable these people are. Okay, and these are extremely loyal people. They are broad-minded and a positive approach and a practical bent of mind they have. They possess a mature understanding of things and are extremely dignified in their behavior. ओके, ऐसे जातक, ऐसे नेटिव्स इस तरीके की इनकी क्वालिटीज़ हो गई, कुछ अच्छी क्वालिटीज़ हो गई जिनका बृहस्पति ग्रह जो है वो लग्नस्थ होते हैं। ठीक है, प्रथम भाव के बृहस्पति की अगर मैं बात करती हूँ, ये आपको जनरली अच्छे रिजल्ट्स ही देते हैं। ओके, क्यों अच्छे रिजल्ट्स देते हैं ज़्यादातर, क्योंकि जो जुपिटर है, जो बृहस्पति ग्रह हैं, ये नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है, बहुत ही शुभ प्लैनेट माने गए हैं। ठीक है, इसलिए जिनकी ये प्लेसमेंट होती है उनके चार्ट्स में जनरली उनको अच्छे रिजल्ट्स ही मिलते हैं। आप बलवान और दीर्घायु व्यक्ति हो सकते हैं। आपका जो आपके अंदर जो है वो स्वाभिमान हो सकता है और आप एक स्पष्ट वक्ता हो सकते हैं। आपका जो स्वभाव है वो उदार हो सकता है। ओके, आप ब्राह्मणों और आई कैन से देवताओं के प्रति श्रद्धा रखते होंगे, आप ऐसे व्यक्ति होंगे। और दान पुण्य के मामले में, दान पुण्य धर्म के मामलों में भी आपकी गहरी आस्था और रुचि होगी और आपको घूमने फिरने का भी, ट्रैवलिंग का भी काफ़ी शौक हो सकता है। ओके, नाउ जनरली luck favors these individuals because of which they tend to get overconfident. So it is important that they weigh the pros and cons effectively before marching towards a goal. Okay, आपको overconfident नहीं होना। This is the topmost point। आपको मैं ये सलाह दे रही हूँ, अगर आपको आपकी किस्मत आपका बहुत साथ दे रही है, आप ऊंचाइयों पर पहुँच रहे हैं, आप जो चाहते हैं वो आपको मिल रहा है, लेकिन अच्छी बात है, लक आपका फेवर कर रहा है, लेकिन आपने ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, ईगोइस्टिक नहीं होना। ओके, दिस इज माय एडवाइस फॉर सच नेटिव। ऐसा नहीं होते ज़्यादातर, बट आपको करना, ओवर कॉन्फिडेंट होना भी नहीं है। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लाना। नाउ दीज इंडिविजुअल आई कैन से आर, दे आर काइंड नेचर, दे आर बेनेवलेंट एंड philanthropic towards society at large. Okay, jovial, ever smiling and a gifted sense of humor, these are some of the best
attributes that a native of this planetary positions enjoys. Okay, in the drive and craziness they are always ahead, and these natives, these individuals have a tendency to step on other people's toes or land up poking their nose in other people's matters which may not be well received. आपकी आदत है ये कि आप दूसरों के मामलों में दखल अंदाजी करते हैं। ऐसा आपको नहीं करना। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपके लिए ही बुरा होगा। ठीक है, तो दूसरों के मामलों से थोड़ा सा दूर ही रहें। ठीक है, आपके पास जो है आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपका स्पाउस, उस पर ध्यान दीजिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए। दूसरों के मामलों में दखल अंदाजी कम करिए, जो आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता। ओके, नाउ दस इट इज इम्पॉर्टेंट दैट दे स्टेप बैक एंड रिव्यू एवरी सिचुएशन बिफोर मेकिंग एनी सजेशंस। ओके, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवाइस फॉर पीपल विद दिस प्लानिटरी पोजिशन फ्रॉम मी। ओके, अब मैं ऐसे जातकों की बात कर रही हूँ जिनका बृहस्पति लग्नस्थ है, लगन में बैठे हैं। तो ऐसे जातकों को अध्यात्म और रहस्यमय विद्याओं में बहुत ज़्यादा रुचि हो सकती है, गहरी रुचि देखने को मिल सकती है। आपका जो स्वभाव है वो स्थिर होना चाहिए, स्थिर रहिए, अस्थिर नहीं। ठीक है, आप प्रामाणिक, सच बोलने वाले और न्यायप्रिय व्यक्ति हो सकते हैं। आपको गवर्नमेंट के द्वारा, आपको सरकार के द्वारा मान सम्मान मिल सकता है और धन की प्राप्ति भी हो सकती है। लेकिन कभी कभी आप झूठी अफवाहें अगर आपके बारे में कोई फैलाता है तो उससे आप परेशान हो जाते हैं। ठीक है, आपको परेशान नहीं होना। लेकिन जो ऐसे जातक होते हैं ये अपने शत्रुओं के लिए कष्टकारी होते हैं। बहुत सारी सिचुएशंस में मैंने देखा है जिनके जुपिटर लगन में होते हैं उनके जो दुश्मन होते हैं, ऐसे नेटिव्स जो दुश्मन होते हैं, ऐसे जातक अपने दुश्मनों के लिए कष्टकारी माने गए हैं। ठीक है, आपके जो अब आपको हेल्थ इशू कौन सा हो सकता है? आपके शरीर में वात से संबंधित प्रॉब्लम्स उत्पन्न हो सकती है, तो ध्यान रखिएगा इस रिलेटेड अपनी प्रॉब्लम्स को। नाउ when I'm talking about when Jupiter is placed in Lagna, while these individuals are bestowed with a lot of lady luck, okay, it is also extremely important to get a little organizational and plan things well, so that they don't have a deal with a last minute hiccups. Okay, we all know that Jupiter is a planet of expansion. Jupiter जो होता है वो expand करता है, फैलता है। जुपिटर है फैलने का प्लैनेट। ठीक है, तो आपको जिनका जुपिटर लगन में होता है वो ज़्यादातर मोटे हो सकते हैं, तो उनको ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा कम खाइएगा बाहर का। ज़रूरी नहीं है कि जिनका जुपिटर लगन में होता है वो मोटे ही हों, क्योंकि दिस इज़ ऑल्सो अ कंडीशन अप्लाई वाला पॉइंट। और भी हमें लगन के लॉर्ड पे, जुपिटर पे कितने मैलेफिक एस्पेक्ट्स हैं, क्या है, वो भी हमें, कई लोग ऐसे होते हैं जिनका गुरु लगन में होता है लेकिन वो बिल्कुल भी मोटे नहीं होते, वो पतले होते हैं। तो इसलिए मैं हर बार आपको कहती हूँ कि हमें पूरी हॉरोस्कोप को, पूरे प्लैनेट, पूरी हॉरोस्कोप, हर चीज़ को देख के, हमें हर पॉइंट को देख के हम प्रेडिक्शन करेंगे, ना कि सिर्फ एक हाउस और एक प्लैनेट को देख के। दीज आर द जनरल रिजल्ट्स विच आई एम टेलिंग यू। सो ओके, सो मैं रिपीट कर रही हूँ, वी नो दैट जुपिटर इज द प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन, सो बी वेरी ऑफ एनी ओबेसिटी रिलेटेड issues or ailments. Okay, now while these natives are lucky to be blessed with this attractive planetary positions, it is important to always keep our feet to the ground. Okay, ऐसे जातकों को अच्छा है, उनकी प्लेसमेंट अच्छी है, काफ़ी अच्छा है। जो नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है वो केंद्र में ही आके बैठ गया, तो ऑब्वियसली आपको अच्छे रिजल्ट्स तो देगा ही देगा, आपका लक आपका फेवर करेगी। लेकिन आपको उड़ना नहीं है, आपको उड़ना नहीं है। ये नहीं सोचना हाँ ये हो गया, अब तो मेरे अलावा और कोई नहीं है इस दुनिया में जो अच्छा हो सकता है, जिसके पास पैसा नहीं हो सकता, सिर्फ मेरे पास पैसा है, ये है, मैं किसी की नहीं सुनूंगा, मैं वो। ऐसे नहीं करना, आपने सबके साथ मिलकर चलना है और ज़मीन पर पैर रखें, नीचे झुक कर जिए। झुक कर जिएंगे तो अच्छा होगा। किसी को परेशान नहीं करना, ईगो नहीं लानी, जिद नहीं लानी अपने अंदर। ओके, नाउ मैं फिर से कहती हूँ, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ऑलवेज कीप योर फीट टू द ग्राउंड। दिस इज़ द
बेस्ट वे टू एंजॉय ऑल द बेनिफिट्स ऑफ दिस पोजिशन। आप ईगो लाएंगे, आप अहम लाएंगे अपने अंदर, तो सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, आपका प्लानिटरी पोजीशन भी कुछ नहीं कर पाएगा उस केस में। तो ये आपके ऊपर है कि आपको किस तरीके से अपनी लाइफ जीनी है, ठीक है। नाउ वन मोर थिंग इज दैट अवॉइड बीइंग too over generous as people may take advantage of your niceness। और एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि ज़्यादा भी generous मत बनिए, ज़्यादा भी दूसरों को चीज़ें मत दिए, दूसरों की हेल्प ज़्यादा मत करिए, क्योंकि आप generous हैं, आपकी क्वालिटी है कि आप generous हैं। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि फ़ायदा उठा लेते हैं ऐसे लोगों का। तो ध्यान से हर चीज़ जो भी करेंगे, ध्यान से सोच समझ कर कीजिएगा अपनी लाइफ में। अच्छा, अब मैं ऐसे जातकों की बात कर रही हूँ, तो यदि आप जो है पुलिस में या सेना में या आबकारी विभाग से जुड़े होंगे, तो लग्नस्थ बृहस्पति आपके लिए हानिकारक हो सकता है, विशेषकर तब होगा ये जब आप घूसखोरी का काम करना शुरू कर देंगे, ठीक है। घूसखोरी करेंगे तो भाई फंसेंगे। तो आपने इन कामों से थोड़ा सा दूर ही रहना है, सेना, आबकारी विभाग या फिर पुलिस विभाग, ठीक है। इसीलिए इन सबसे आपको बचना है, दूर रहिए इनसे, इन चीज़ों से, गलत चीज़ों से दूर रहिए, ठीक है। घमंड और व्यभिचार से भी आपको दूर रहना है, ये मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ। आपने स्टबर्न नहीं बनना, आप में अपनी ईगो कम रखनी है, अहम नहीं लाना, ठीक है। दूसरों की हेल्प करिए, लेकिन इतनी हेल्प ना करिए कि आप खुद डूब जाएं। तो मैंने आपको बहुत सारी बातें बता दी, अब आपके हाथ में है कि आपको अपनी लाइफ कैसे हैंडल करनी है, ओके। आप जो है विभिन्न प्रकार के भोगों में अपना पैसा खर्च करते रहेंगे, आपके पास गाड़ी बंगला वगैरह सब होना चाहिए, फिर भी एक कंडीशन अप्लाई वाला पॉइंट आ जाता है। आपको जो है अपनी स्त्री यानी अपने स्पाउस और अपने बेटे या अपने बच्चों का जो सुख है वो ज़रूर मिलेगा, और आपका जो पुत्र होगा, आपका जो बेटा होगा, उसकी एज, उसकी लॉन्गेविटी अच्छी होगी, वो दीर्घायु हो सकता है, ओके। तो मैंने आपको आपके अच्छे पॉइंट्स भी बता दिए, आपके नेगेटिव पॉइंट्स भी बता दिए। अब ये आप पर डिपेंड है कि आपने किस तरीके से मेरी एडवाइसेस को फॉलो करना है। So guys, these were my analysis when Jupiter is placed in ascendant or first house of a natal chart. अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो जल्द से जल्द जाइए, सारी मेरी पुरानी वीडियोस को देख डालिए। लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको अपनी कुंडली किसी भी सॉफ्टवेयर पर बनानी पड़ेगी, और फिर जो उसमें प्लैनेट्स बैठे हैं कौन से हाउसेस में, फिर मेरे आप वीडियोस से कंपेयर करेंगे, तो आपको अपने बारे में कुछ ना कुछ नया और बहुत इंटरेस्टिंग जानने को मेरी वीडियोस से ज़रूर मिलेगा। तो जल्दी से जाइए और मेरी सारी वीडियोस देखिए, आज ही देखिए मेरी सारी वीडियोस, और मेरे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोस भी आप मेरी जल्द से जल्द देख सकें। Do not forget to subscribe to my channel on YouTube so that you can watch my all upcoming videos। मेरा चैनल का लिंक इस पर आपको दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मेरे से आप हॉरोस्कोप कंसल्टेशंस ले सकते हैं मेरे वेबसाइट के थ्रू, जो कि है www.astrologerpankrivarma.com। उसमें आप कैसे ले सकते हैं मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशंस, कैसे बुक कर सकते हैं, उसमें एक कॉन्टैक्ट फॉर्म होगा, वो आपको फिल करके मुझे भेजना है, मैं आपको रिस्पॉन्स ज़रूर दूंगी। मेरी वीडियोस देखने का एक फ़ायदा आपको हो सकता है कि अपने दुखों के कारण और निवारण आपको मेरी वीडियोस से मिल सकते हैं। यदि फिर भी आप मुझसे प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको मेरा नंबर दिख रहा होगा, इस पर आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पर मेरे वेबसाइट का भी एड्रेस दिख रहा होगा, तो वेबसाइट का एड्रेस पे आप मुझे मेरा कॉन्टैक्ट, जो उसमें फॉर्म है, कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल करके आप मुझे सबमिट कर सकते हैं। मैं आपको रिस्पॉन्स ज़रूर और जल्दी से जल्दी दूँगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूँगी बृहस्पति ग्रह जब सेकेंड हाउस में बैठते हैं तो किस तरीके के रिजल्ट्स देते हैं। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।